Hello friends, today I am going to explain you the formation of bubbles or drop. So both are similar words, okay? So don't confuse. So in this video I am going to explain you, if you don't know uh, the why the drop or bubbles are spherical in shape. So in this video it's very important for you friends, so watch till end, okay? So have a look. This is your drop or bubble. Consider this is your drop or bubble. Why it's look like in spherical shape, okay? Why? Because due to the means the force always try to minimize its surface area. ये इसलिए स्पेरिकल होता है क्योंकि जो हमने पढ़ा था कि सरफेस टेंशन में क्या होता है, जो है वो अपने एरिया को सुखाड़ता है, सरफेस एरिया को अपने मतलब मिनिमाइज करता है, एरिया को क्या करता है, मिनिमाइज करता है, जिसके कारण जो है बबल और ड्रॉप है ना आपको स्पेरिकल शेप में दिखता है। वाई? बिकॉज the surface tension or surface due to minimize its surface area, it looks like spherical in shape, okay? because a bubble drop doesn't collapse। और ना ये जो है ना, अगर आप देखे होंगे कभी ड्रॉप जो है ग्लास में ऐसा जब बहता है तो वो कोलैप्स भी नहीं होता है, बट वो निकल के जैसा अगर स्लोप मिलता है, कुछ ग्रेडियंट रहता है, वो फ्लो होके फिर नीचे जो है वाटर जैसा मतलब वो हो जाता है, बट कोलैप्स इसलिए नहीं होता है ड्यू टू द रिजल्टेंट ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर, रिजल्टेंट ऑफ external pressure and surface tension is smaller than pressure drop। तो क्या होता है फ्रेंड्स, जो रिजल्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, जो भी इसमें एक्सटर्नल प्रेशर लगता है ना, आउटसाइड प्रेशर, वो है सरफेस टेंशन, उससे कम रहता है। सरफेस टेंशन मीन्स द फोर्स विच इज एक्टिंग टेंजेंशियली, ओके, पर यूनिट लेंथ। जो भी आपका जो रिजल्टेंट प्रेशर रहेगा, रिजल्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर रहेगा, वो सरफेस टेंशन से कम रहेगा, जिसके कारण जो है आपका जो बबल है वो कोलैप्स नहीं होता है, ओके? तो आप समझ में आ गया होगा कि जो है बबल्स क्यों स्फेरिकल शेप में रहते हैं, क्योंकि इसमें जो मेन रोल होता है उसमें क्या होता है, ड्यू टू एक्सटर्नल pressure and surface tension, okay, it behaves it minimize its surface area, that's why it look like spherical in shape, okay? Now we'll move to the excess pressure inside a liquid drop, okay? So the diagram which I have draw here, so now I am going to express this topic, okay? So this is your derivation here, I am going to explain you later. So friends, due to this shape is look like an spherical shape, and friends, the resultant external pressure is smaller than surface tension, okay? And now one more thing friends, why it's look like spherical, because the internal pressure of this bubble is more as compared to the external pressure। so inside जो bubble का और drop का जो inside का pressure रहेगा, यानी PI, जिसे हम डिनोट करते हैं PI, यहाँ पर मैंने बनाया है PI, इसका pressure ज़्यादा होगा as compared to the outside pressure। so that is the main reason the drops is look like an spherical, okay? And it doesn't collapse with each other। Now friends, we will move to the this topic, okay? This is your derivation here, excess pressure inside a liquid drop, and the diagram which I have made here, draw here, it's one spherical shape, okay? Drop is here, your bubble, मतलब यहाँ पर आपका एक बबल है, ओके, जिसका रेडियस सेंटर से r है, ये PI क्या डिनोट कर रहा है, कंसीडर spherical shape, okay? And PI, P naught, R, del R,
तो ये क्या पी आई आपका क्या डिनोट करेगा, इंटरनल प्रेशर और इनसाइड प्रेशर. लेट पी आई बी द इनसाइड pressure, okay, and PO be the outside pressure, and R is your radius of bubble, okay, inside bubble, or del R is your change in दिस बबल. मीन्स क्या है ये आर टू डेल आर, मीन्स यहाँ से ये सोप बबल जो है आपका रेडियस इतना चेंज हो रहा है. तो कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा है वो आपका है इंक्रीमेंट, इंक्रीज इन एरिया, इंक्रीज इन रेडियस, इंक्रीज इन रेडियस फ्रॉम आर टू डेल आर, ओके. और डेल आर को आप और एक चीज़ से इंक्रीज इन रेडियस भी आप लिख सकते हो. इसका रेडियस जो है पी आई से यहाँ तक बड़ा है, सोप बबल की वजह से जो है एक सरफेस फिल्म फॉर्म हुआ है. और ये जो डेल आर है वो हम जो है बहुत ही, इट इज़ वेरी 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 स्मॉल, दैट्स व्हाई वी आर नेग्लेक्टिंग, और लेटर ऑन वी आर नेग्लेक्टिंग दिस, ओके. एंड लेट द रेडियस ऑफ ड्रॉप, लेट यहाँ पर लिख देता हूँ, लेट द रेडियस ऑफ ड्रॉप इंक्रीजेस. सो कितना इंक्रीज हो रहा है, आर टू डेल आर, आर टू डेल आर, ओके. वेर डेल आर, ये जो डेल आर है बहुत ही कम होगा फिर. तो वेर डेल आर इज वेरी स्मॉल एंड प्रेशर इनसाइड ड्रॉप रिमेन कांस्टेंट. क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि हम क्या कंसिडर कर रहे हैं कि ये जो डेल आर है, जो सोप बबल की वजह से जो एक दूसरा एक एक्सटर्नल फिल्म फॉर्म हो रहा है, उसका जो है रेडियस बहुत ही छोटा होने की वजह से हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं. जो इनसाइड प्रेशर होगा वो क्या होगा, थ्रू आउट कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा, ओके. एंड सो द एक्सेस जो एक्सेस प्रेशर, जो ज़्यादा प्रेशर लग रहा है इसमें, वो क्या होगा, प्रेशर इनसाइड, जो भी एक्सेस प्रेशर लग रहा है इनसाइड अ ड्रॉप इज योर पी आई माइनस पी नॉट. क्योंकि पी आई मैंने इससे पहले भी बताया, आपको एक्सप्लेन किया कि यहाँ पर प्रेशर कौन सा ज़्यादा रहेगा, इंटरनल प्रेशर, इनसाइड प्रेशर आपका ज़्यादा रहेगा एज कंपेयर टू एक्सटर्नल प्रेशर, बिकॉज द चेंज इन रेडियस इज वी आर कंसिडरिंग इज नेग्लेक्ट. क्योंकि बहुत ही कम होने की वजह से हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं. तो इसीलिए जो है मैं आपको बताया भी था, स्पीयर जो है ड्रॉप जो है स्फेरिकल शेप में दिखता है, इसीलिए क्योंकि वहाँ पर इंटरनल प्रेशर ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू एक्सटर्नल प्रेशर. दैट्स वाई अगर मैं इंटरनल प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से पी आई माइनस पी नॉट किया हूँ, अगर मैं यहाँ 2 - 1 करूँगा तो 1. अगर मेरा एक्सटर्नल प्रेशर ज़्यादा होता तो मैं 1 - 2 करूँगा तो यहाँ -1. ऐसा एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रहा हूँ आपको. तो इसीलिए इंटरनल प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से हमने पहला क्या लिखा है, पी आई माइनस पी नॉट, ओके. मतलब क्या हो रहा है, इंटरनल प्रेशर ये सोप बबल में जो है ज़्यादा है एज कंपेयर टू दी एक्सटर्नल प्रेशर, ओके. derive this expression, express excess pressure inside a liquid drop. Now the area it means initial area of drop. स्फेरिकल एरिया का फॉर्मूला आपको पता होगा, क्या होता है, A = 4πr². ये फॉर्मूला होता है किसका, स्फेरिकल, कोई भी चीज़ जो स्फेरिकल शेप में है उसका फॉर्मूला, इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 4πr². तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, इनिशियल, जो इनिशियल में इसका एरिया है ये बबल का अंदर का, वो क्या है, इनिशियल एरिया ऑफ बबल विच इज इक्वल टू 4πr², ओके. नाउ अब फाइनल मीन्स ये वाला जो इसका जो एरिया मिलेगा उसका फाइनल एरिया ऑफ बबल
कितना है 4 पाई आर। अब यहाँ पर आर लगेगा क्या फ्रेंड्स, क्योंकि मेरा सेंटर से लेकर यहाँ से मैं दिया हूँ यहाँ से यहाँ तक, तो ये आर प्लस डेल आर रहेगा। तो ये आर आपका चेंज हो जाएगा विद क्या, आर प्लस डेल आर का होल स्क्वायर। ओके, नाउ इंक्रीज इन सरफेस एरिया, कितना इंक्रीज हुआ उसका सरफेस एरिया, इंक्रीज इन सरफेस एरिया इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला क्या होता है, अगर कोई भी अगर मैं चेंज इन लेंथ या चेंज इन एरिया बोलूँगा, चेंज इन लेंथ बोल रहा हूँ मतलब फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया L2 माइनस L1, वैसी एरिया के लिए रहेगा A2 माइनस A1। तो चेंज इन एरिया मीन्स फाइनल माइनस इनिशियल, तो इसको इसके साथ मैं माइनस करूँगा। तो ये क्या है मेरा 4 पाई आर प्लस डेल आर का स्क्वायर माइनस 4 पाई आर का स्क्वायर। क्या किया मैंने, चेंज इन सरफेस एरिया, इसको इस डेल ए भी लिख सकते हो आप, डेल ए, और इसका दूसरा मतलब क्या रहता है A2 माइनस A1। ऐसा आप इजी समझने के लिए आप लिख सकते हो। अब यहाँ पर 4 पाई कॉमन है तो मैं क्या करूँगा, बाहर निकाल दिया इसको, तो बचा के अंदर r प्लस डेल आर का होल स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर। एज यू ऑल नो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड्स, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। सेम थिंग वी आर going to simplify this question also. So what we get 4 पाई a का स्क्वायर है ना, a क्या है हमारा ये है और b ये है, तो a का स्क्वायर मीन्स r का स्क्वायर प्लस 2ab r डेल r, फिर प्लस b का स्क्वायर डेल r का स्क्वायर माइनस r का स्क्वायर। ओके, अब क्या करूँगा 4 पाई को मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 पाई और ये 4 टू ज़ा 8, पाई का पाई आर का आर इंटू डेल आर। अब यहाँ पर क्या क्या बचा आपको, आर स्क्वायर ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ये बचा आपको डेल आर प्लस डेल आर का स्क्वायर। अब हम क्या बोल रहे हैं कि जो चेंज इन रेडियस हुआ है, ये चेंज इन रेडियस है, वो तो हम अगर इमेजिन करेंगे तो वो तो एकदम ही ज़्यादा छोटा है, मतलब इसका इंटरनल जो बबल का जो रेडियस है और बाहर के रेडियस, जो बाहर का रेडियस है वो बहुत ही छोटा होगा, जिसके कारण हम क्या कर रहे हैं उसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं। तो व्हाट वी आर डूइंग, डेल आर इज वेरी स्मॉल, देयरफॉर वी आर नेग्लेक्ट डेल आर। ओके, तो जब ये नेग्लेक्ट कर दूंगा तो ये भी जीरो हो जाएगा आपका डेल आर स्क्वायर, क्योंकि ये बहुत ही छोटा है। और फ्रेंड्स हम 4 पाई को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किए थे, तो 4 को मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो मुझे ये मिला था। अब ये तो कैंसिल हो गया आपका आर स्क्वायर, बट 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया एक बार, अब इसके साथ भी तो मल्टीप्लाई करूँगा ना मैं, तो यहाँ से डेल आर स्क्वायर नहीं आएगा बल्कि 4 पाई भी आएगा। तो 4 पाई और डेल आर स्क्वायर जब मैंने नेग्लेक्ट कर दिया, इसको ज़ीरो बोल दिया, तो एनीथिंग which is multiplied by 0, the answer will become 0. So this whole term will become your 0. So now the remaining one is your 8 pi r del r. Okay, so यहाँ तक आपको मिला। अब इसके आगे फिर सॉल्व करेंगे, यहाँ स्पेस नहीं है फ्रेंड्स, स्पेस है फ्रेंड्स। तो आपका ये क्या था जो मिला आपको, डेल ए है, ये चेंज इन एरिया मीन्स फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया, क्या मिला आपको ये। अभी फ्रेंड्स यहाँ पर डायग्राम में देखिए, डायग्राम में क्या हो रहा है, मैं स्टार्टिंग से आपको लेक्चर में बता रहा हूँ कि सरफेस एरिया क्या कर रहा है, ड्यू टू सरफेस टेंशन इट कैपेबल टू मिनिमाइज इट सरफेस एरिया, देन व्हाट विल हैपन, द आउटसाइड फिल्म विच इज हियर, दिस इज योर आउटसाइड फिल्म, सोप बबल का जो बाहर का जो फिल्म बन रहा है, और ये आपका क्या कर रहा है, आपका सरफेस मिनिमाइज कर रहा है। ओके, ये मिनिमाइज मतलब सुखड़ रहा है, जिसके कारण वो स्पेरिकल शेप में दिख रहा है। अब ये सुखड़ रहा है, उसके अगेंस्ट में हम क्या कर रहे हैं, ये जो आपका बाहर का जो फिल्म बन रहा है उसके अगेंस्ट में हमको ये जो बनेगा, तो उसके लिए तो वर्क डन लगेगा कुछ। अब यहाँ पर ये अंदर की तरफ खींच रहा है टूवर्ड्स द सेंटर,
जो वो दूसरा फिल्म न्यू फिल्म बनेगा उसके लिए, न्यू फिल्म बनने के लिए कुछ तो वर्क लगेगा, कुछ तो एनर्जी लगेगी वो फिल्म बनने के लिए। तो नाउ दिस डेल ए विल कम इन टर्म्स ऑफ वर्क डन। सो वर्क डन फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन बाय फोर्स। वर्क डन क्यों लग रहा है आपको बता दिया कि ये मिनिमाइज कर रहा है सरफेस एरिया, और ये जो बाहर का जो लेयर फॉर्म हो रहा है उसके लिए जो वर्क डन और फोर्स लग रहा है इसलिए। और वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या है आपका? एरिया। तो फोर्स इंटू डेल, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट को डी एस से भी इंडिकेट कर सकते हैं और एस से भी, वॉटेवर। तो अब मैं क्या करूँगा, ये तो फॉर्मूला जनरल बेसिक फॉर्मूला लिखा हूँ मैंने, बट यहाँ जो वर्क डन हो रहा है अगेंस्ट दी इंटरनल बबल, तो यहाँ पर स्मॉल वर्क डन हो रहा है, ना कि ज़्यादा एनर्जी नहीं लग रही है। जो न्यू फिल्म फॉर्म हो रहा है सोप बबल का बहुत ही कम लग रहा है, तो मैं वर्क डन को डी डब्ल्यू भी लिख सकता हूँ, क्योंकि स्मॉल वर्क डन लग रहा है ये फिल्म फॉर्म होने के लिए, एक्सटर्नल प्रेशर। तो फोर्स को इन टर्म्स ऑफ टेंशन लिखूंगा, तो टी से डिनोट करूंगा। फोर्स इज नथिंग बट योर टेंशन। दोनों का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। ओके, सो फोर्स इज नथिंग बट योर टेंशन। ओके, एंड डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है? चेंज इन योर एरिया, है ना। यहाँ पर एरिया का चेंज हो रहा है, यहाँ से इतना बन गया आपका एरिया, पहले इतना कम था, फिर ड्यू टू सरफेस एक्सटर्नल फोर्स और एक्सटर्नल प्रेशर द फिल्म इज फॉर्म। तो डेल ए, तो डेल ए आपका क्या है? आपने यहाँ पर पढ़ा है इंक्रीज इन सरफेस एरिया। ओके, फोर्स को मैं क्या किया? टेंशन से वेट किया, और डिस्प्लेसमेंट को डेल ए से। बोथ आर सेम इन क्वांटिटी। ओके, सो नाउ द फॉर्मूला विल बिकम, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड्स? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। ओके, फोर्स अपॉन एरिया। अब हमें क्या चाहिए? फोर्स चाहिए, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलेगा? फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। ओके, सो प्रेशर क्या है आपका? प्रेशर यहाँ पर लिखा था मैंने, क्या है प्रेशर? द एक्सेस प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप इज पी आई माइनस पी नॉट। ओके, तो ये आपका प्रेशर, टोटल प्रेशर किसके इक्वल है? इंटरनल प्रेशर ज़्यादा होगा माइनस एक्सटर्नल प्रेशर कम होगा। तो आपका P क्या हो जाएगा? P होगा आपका पी आई माइनस पी नॉट इंटू ए। ओके, यहाँ तक होगा आपका। यहाँ पर वर्क डन बाय फोर्स इन टर्म्स ऑफ सरफेस टेंशन है, तो यहाँ पर लिख दीजिए आप सरफेस टेंशन, तो आपको क्या है? कंफ्यूज नहीं होगा। ओके, तो इन टर्म्स ऑफ सरफेस टेंशन है तो आप कंफ्यूज नहीं होगे। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? आप सरफेस टेंशन इन टर्म्स ऑफ सरफेस टेंशन है तो एफ की जगह पे आपका टी आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर टी इंटू डेल ए हो गया। आपका डी एस क्या है? चेंज इन इंक्रीमेंट इन सरफेस एरिया, इंक्रीज इन सरफेस एरिया। तो ओके, ये आपका ये हो गया। अब ये प्रेशर का जो है बेसिक फार्मूला था, ये नहीं भी लिखोगे चलेगा। अब यहाँ पर भी सेम जो फोर्स अप्लाई होगा, तो ये आपका इन टर्म्स ऑफ स्मॉल ही रहेगा। जैसा वर्क डन कम लगा, इसमें कम एनर्जी लगी ये फिल्म फॉर्म होने के लिए, अगेंस्ट दी टू दी सरफेस, जो सरफेस मिनिमाइज कर रहा है उसके अगेंस्ट पे जो एनर्जी लग रही है वो भी कम लग रही है। तो जो फोर्स लगेगा उसके अगेंस्ट में वो भी आपका डी रहेगा, मतलब चेंज इन फोर्स, चेंज इन वर्क डन, स्मॉल वर्क डन और स्मॉल फोर्स। तो इसका भी डी एफ इक्वल टू पी आई माइनस पी नॉट इंटू ए। नाउ फ्रेंड्स, अभी जो है आपका वर्क डन इन टर्म्स ऑफ फोर्स रहेगा, तो यहाँ पर लिख लो वर्क डन बाय फोर्स। अब ये पहले कैसा था? सरफेस टेंशन था, इसलिए हमने टेंशन लिखा था। अभी फोर्स के जरिए रहेगा, तो क्या आएगा? डी डब्ल्यू विच इज इक्वल टू एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा आपका? डिस्प्लेसमेंट रहेगा डेल ए। ओके, नाउ अभी यहाँ पर आपको फोर्स क्या मिला है? डी एफ क्या मिला है? ये भी डी एफ रहेगा, स्मॉल फोर्स। ओके, तो डी एफ आपको क्या मिला? ये, तो इसकी वैल्यू आप डी एफ की जगह पे क्या लिखोगे? पी आई माइनस
पी नॉट इंटू ए इंटू डेल ए, ये क्या था आपका स्मॉल वर्क डन। ओके, तो इसको अभी यहाँ पर भी देखिए आपका इसमें डेल ए मिला, तो डेल ए हमको कितना मिला था 8/r डेल आर स्क्वायर। तो इसको हम अगेन क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाई टी इंटू, अब डेल आर कितना है 8/r इंटू डेल आर स्क्वायर, 8/r इंटू डेल आर स्क्वायर। ये था आपका इक्वेशन 1। ओके, ये इक्वेशन 1 हो गया। फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो गया है कि यहाँ पर 8/r डेल आर है, क्योंकि हमने तो डेल आर का स्क्वायर जो है नेगलेक्ट कर दिया था, तो यहाँ पर बचा गया था अपने पास डेल आर। तो यहाँ पर डेल आर का स्क्वायर नहीं बल्कि डेल आर होगा। ओके, तो यहाँ पर इसको ब्रैकेट में भी लिख सकते हो आप 8/r इंटू डेल आर। एंड फ्रेंड्स, वर्क डन बाय फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है, T इज इक्वल्स टू F/L। L होता है ना, तो सरफेस टेंशन आपका फोर्स पर यूनिट लेंथ की वजह से आपको सरफेस टेंशन, आप वर्क डन जो है इन टर्म्स ऑफ सरफेस टेंशन लिख रहा हूँ, तो ये डिस्प्लेसमेंट जो है उसको डेल ए से इंडिकेट करेंगे। क्यों इंडिकेट करें, क्योंकि फोर्स पर यूनिट लेंथ एरिया होता है। ओके, तो लेंथ और एरिया, इसलिए हम dw इक्वल्स टू फोर्स की जगह पे T लिख रहे हैं क्योंकि सरफेस टेंशन ले रहे हैं, और ds की जगह पे डेल ए लेंगे। अब ड्यू टू वर्क डन बाय फोर्स, स्मॉल वर्क डन ड्यू टू फोर्स होगा तो क्या होगा, dw विच इज इक्वल टू df। स्मॉल फोर्स लग रहा है और स्मॉल वर्क डन लग रहा है, तो dw, यहाँ पर भी dw। अब यहाँ पर T नहीं लेंगे क्योंकि हम अब सरफेस टेंशन को क्या फोर्स ले रहे हैं, इसलिए df आएगा। और यहाँ पर जो है फोर्स के लिए डेल ए नहीं आएगा, क्योंकि फोर्स जब लग रहा है तो ये डेल आर चेंज हो रहा है, आर का जो है इंक्रीमेंट हो रहा है कितना, डेल आर। तो यहाँ आपका क्या आएगा, डेल आर। ओके, तो ये जो फॉर्मूला है df की जगह पे मैं पुट किया, df की जगह में ये होल टर्म पी आई माइनस पी नॉट इंटू है, ये कैसा आया, p का यहाँ से मिला अपने को, a का a सेम लिखा। अब df की जगह में मैं ये पूरा टर्म पुट किया, पी आई माइनस पी नॉट इंटू ए इंटू डेल आर आएगा। ओके, तो ये करेक्शन था फ्रेंड्स, क्योंकि हम सरफेस टेंशन की बात करते हैं इसलिए डेल ए लिए, क्योंकि फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है इसका फॉर्मूला। अगर हम फोर्स की बात करेंगे तो ड्यू टू वर्क डन स्मॉल वर्क डन वी आर कंसिडरिंग df बिकॉज ऑफ स्मॉल फोर्स इज exerting over here and into del r, it means force into displacement। तो यहाँ पर आपका डिस्प्लेसमेंट डेल आर होगा, और सरफेस टेंशन की आप बात करोगे तो डेल होगा। ये आपको जो है याद रखना है फ्रेंड्स। ओके, सो नाउ अब क्या करूँगा मैं, ये आपको मिल गया dw, ये भी आपका dw है, तो दोनों को इक्वेट कर दो। अगर मैं इसको बोल रहा हूँ इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन आपका ये 2 हो, तो दोनों को इक्वेट कर दो, इक्वेशन 1 and 2 इक्वेट equation 1 and 2। Why we are equating, because this is also carry dw and this is also carry dw, only the thing is that the difference is that is surface tension, it is by force। So what we are getting here, pi minus p naught into a into del r which is equal to क्या है, t। ये मिटा देता हूँ फ्रेंड्स, इसका मैं यहाँ पर t 8/r इंटू डेल आर। ओके, अभी यहाँ पर देखिए ये दोनों को मैंने इक्वेट कर दिया। अभी क्या करूँगा मैं, पी आई माइनस पी नॉट, ये क्या है पूरा होल टर्म मल्टीप्लिकेशन में, तो यहाँ के डिवीजन में चले जाएगा 8/r डेल आर बाई ए इंटू डेल आर। ओके, ये था आपका बाई सिंप्लीकेशन। तो आपका क्या क्या कैंसिल होगा, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, और कुछ कैंसिल हो रहा है नहीं। सो नाउ फ्रेंड्स, डेल आर गेट्स कैंसिल, सो पी आई माइनस पी नॉट टी 8/r अपॉन, अभी ये ए की जगह में क्या लिखूंगा फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हो आप पाई आर स्क्वायर है, तो
4 पाई आर स्क्वायर, ये स्फीयर का एरिया का फॉर्मूला है। ओके, अभी इसमें भी कैंसिल होगा कुछ, तो 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। ओके, ये आर स्क्वायर आर कैंसिल हो गया, ये पाई कैंसिल हो गया। ओके, और बचा क्या आपके पास, आर स्क्वायर 2t अपॉन 2t अपॉन आर बचा, ये पी आई माइनस पी नॉट। ओके, तो अभी यहाँ पर डबल टेंशन आ रहा है, तो ये हो गया आपका 2t अपॉन आर फ्रेंड्स। सो इसको क्या क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, अभी ये देखिए, इसको हम बोलते हैं, जो क्वेश्चन था हमारा, एक्सेस प्रेशर इनसाइड लिक्विड ड्रॉप और बबल, ड्रॉप को बबल भी बोलते हैं। ओके, और क्या बोलते हैं इसको, लैप्लास लॉ ऑफ स्फेरिकल मेम्ब्रेन। इसको हम क्या क्या बोलते हैं, जो हमने टॉपिक लिखा था एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप, वही हमने प्रूव किया, जो इंटरनल प्रेशर और इनसाइड प्रेशर माइनस एक्सटर्नल प्रेशर किसके इक्वल होता है, 2 इंटू टेंशन बाई रेडियस। तो ये जो है लास्ट में स्टेटमेंट आपको लिखना होता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।